السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کل ہندوستان میں ایک اور پروپیگنڈا شروع ہوا ہے کہ مسلمان لوگ اپنے مذہب دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ ایسے پروپیگنڈے پہلے بھی ہو رہے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہترین سا بیان ہے، ویڈیو کو مس نہ کرے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ کہ اب نئی پیڑھی جو ہے اسلام چھوڑ کر ایکس مسلم بن رہی ہے، جیسے کہ آپ جی بالکل آپ نے صحیح سوال کیا۔ اور اگر آپ پیو ریسرچ جس سروے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 2017 کی سروے کی رپورٹ ہے نارتھ امریکہ کے بارے میں، امریکہ یا نارتھ امریکہ کی رپورٹ ہے، اس میں 23% مسلم جو ہے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ 23% ریٹ آپ سوچئے، ہر جگہ پہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک انسان خود مطالعہ کرتا ہے قرآن کا، حدیثوں کا، اسلام کے کانسیپٹ کا، اس کے اندر جو کٹرتا ہے اس کو جب دیکھتا ہے، اس کے دلوں میں سوال آتا ہے، اس کے ذہنوں میں سوال آتا ہے اور اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے، اس کو ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ اس میں انسانیت نہیں ہے، تو پھر لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی میں سے میں ہوں اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سامنے آ کے اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ ان کے گھر والے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے محلے والے ان کے اگینسٹ میں آ جاتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے کئی سارے لوگ اسلام چھوڑنے کے باوجود سامنے کھل کے آ کے بول نہیں پاتے ہیں۔ جی مولانا رشیدی صاحب، کیا واقعی میں لوگ ایکس مسلم بن رہے ہیں؟ کیا واقعی میں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، یا پھر ایک الگ طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا بھر میں، جہاں ہم ایسے فورمز دیکھ رہے ہیں ایکس مسلم؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، سب سے پسندیدہ دین۔ اور اللہ کو فرق نہیں پڑتا اگر ساری دنیا مل کر نماز پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، رسول کو ماننا چھوڑ دے، قرآن کو ماننا چھوڑ دے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ جتنا بڑا ہے اس سے کم ہو جائے گا، یا اگر ساری دنیا مل کر نماز پڑھنا شروع کر دے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، وہ جتنا بڑا ہے اس سے بڑا ہو جائے گا، ایسا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ میری اپنی دھارنا ہے، یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ رہتا ہوں یا اسلام کے ساتھ نہیں رہتا ہوں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے اسلام کے خلاف آج سے نہیں چل رہے ہیں، رہتی دنیا سے لے کر آج تک اور قیامت تک چلیں گے۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہر دور میں آئے ہیں جنہوں نے نبوت کے بھی دعوے کیے ہیں، جنہوں نے قرآن کی بھی مخالفت کی ہے، اور آج بھی بہت لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ بھائی نہ مانے تو اس میں کوئی برائی تھوڑا ہی ہے۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے میرا ماننا یہ ہے سنکھیا بڑی ہے حال فی الحال میں لوگوں کی جو اسلام چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہیں؟ میرے نزدیک جو میں امریکہ جیسے انہوں نے ابھی بتایا ہے، امریکہ کی بہت پرسدھ ایک میگزین میں 1992 یا 93 کی رپورٹ ہے، میں نہیں یاد کر پا رہا ہوں ابھی، اس میں لکھا تھا کہ اور جگہوں سے زیادہ 60% اسلام جو ہے امریکہ میں پھیل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بہت سارے ادھارن دے سکتا ہوں، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر جو اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھنے کے بعد جس دھرم کا نام ہی پیس ہو، اسلام، پیس، امن، شانتی، محبت، پیار، اس دھرم کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ ساحل، اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو چھوڑے۔ ایجنڈا ہے، کوئی اسلام نہیں چھوڑ رہا ہے۔ رشیدی صاحب کہہ رہے ہیں اسلام کا تو اور زیادہ پرچار پسار ہو رہا ہے، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ کا غلط آروپ ہے یہ، آپ جیسے چند لوگ ہیں جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ جواب دیں۔ ایک چیز اور میں کہہ دوں، 30 سیکنڈ میں، 30 سیکنڈ میں، جی ایک سیکنڈ، ساحل وہ اپنی بات پوری کر لیں پھر آپ۔ ساحل ایک سوال کا اور جواب دے دینا۔ میں نے آپ کو، اگر اسلام اتنا ہی برا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ایکس مسلم کیوں لکھتے ہیں میرے بھائی؟ آپ اپنے آپ کو ہندو لکھیے، عیسائی لکھیے، سکھ لکھیے، ناستک لکھیے، کچھ بھی لکھیے، ایکس مسلم یعنی مسلم کا سہارا لے کر آپ اپنے پروپیگنڈے کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی افواہیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایکس مسلم لکھنا چھوڑ دیجیے اگر آپ کو نفرت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ان کا لاسٹ سوال ہے، اس کا میں جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ میں اپنے آپ کے ساتھ ہندو، کرسچن یا ایتھیسٹ یا جو بھی ہے اس لیے نہیں لکھتا ہوں کیونکہ نہ میں ہندو ہوں
ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख बना हूँ, आप ना मुस्लिम भी तो एथियस्ट नहीं बना हो हूँ। ना। मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं, मैं अब मुस्लिम भी तो मुसलमान नहीं हो रहा ना, हूँ, तो एक्स इसके लिए मैं मुस्लिम अपने क्यों नाम लिखते के हो? साथ मुसलमान का मेरी सहारा बात लेकर कंप्लीट करने दीजिए। इस्लाम का इसके लिए सहारा एक्स लेकर मुस्लिम क्यों आगे बढ़ लगाया। रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है। Brother, I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या ज़रूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज़्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए। किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के ज़रिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाबु वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिश्तुम मिनल शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज़्यादा मौत होती है। जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, अक्सर 80% से ज़्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूँ। तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है
क्या पीएचडी करना अच्छा है? PhD, of course. पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान? एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर। अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो PhD कर पास होगा ना। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? Yes. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? Idol worship. Yes. आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? Yeah. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? Yes, yes. आप मानते हैं, माशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? Yeah, I'm studying Islam. आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? No, I'm studying Islam right now. So, तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? yeah, और I have to study more. इंशाल्लाह। तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा ख़वातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मज़हब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा। दोस्तों इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, ये अमन का मज़हब है, ये शांति का मज़हब है, इसमें सुकून है, ये सच्चा मज़हब है, इसमें सच्चाई है, इसके हर बात में सच्चाई है। दोस्तों ये सारी दुनिया अगर मिलकर तब भी इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये दीन, ये मज़हब अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरा पसंदीदा मज़हब है, ये मेरा पसंदीदा दीन है, और जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। इन कमज़ोर और तंग नज़र लोगों की ये नज़रिया है कि इस्लाम इन बातों से कमज़ोर हो जाएगा या किसी एक बंदे को पैसे देकर इस्लाम से दूर ले जाते हैं तो एक बंदे से इस्लाम का कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, लोग खुश हो के खुशी से हो दूसरे मज़हबों से आकर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में अमन है, सुकून है, इंसाफ है। दोस्तों बाकी मज़हबों के लोग खुदकुशी करते हैं, वो अपने आप को मारते हैं, वो ज़िना, शराबखोरी, जुए कामों में मशगूल होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। जब वो इस्लाम के बारे में रिसर्च करते हैं और इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा इस्लाम एक बहुत पाकीज़ा मज़हब है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाएं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।